تو کیونکہ یہ مدرس ڈے اسپیشل ہے تو آج کا میسیج میں ہی آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اور آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے۔ اور مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت بہت پسند ہے، اور اس ٹاپک پہ بہت بہت دفعہ میں شیئرنگ کر چکی ہوں مدرس ڈے کے حوالے سے جو ہے، لیکن میرے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ سارے پاکستان میں ہی چھوٹ گئے جب میں ادھر امریکہ میں شفٹ ہوئی۔ لیکن ابھی جو یہ میسیج ہے یہ ایک ریفریش میسیج ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کر رہی تھی کہ جب میں اس میسیج کو پریپیئر کر رہی تھی، آپ کے لیے لکھ رہی تھی، تو میں نے خود بھی اس میں سے بہت سیکھا ہے۔ کچھ ایسی ریفریش باتیں ہیں جن پہ خداوند ہمارا دھیان گیان پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ فوکس کروانا چاہتا ہے، تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے، آپ سب بہن بھائیوں کی موجودگی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور آپ اسی طرح اس بروڈ کا حصہ بنا رہیں۔ اسکرین پر ٹیپ ٹیپ کریں تاکہ براڈ گرنے نہ پائے، کیونکہ جب میں شیئرنگ کر رہی ہوں گی تو میں کسی بھی چیز کو جو ہے نہیں ہاتھ لگا رہی ہوں گی، تو آپ کی جو ہے کنٹریبیوشن دیٹس مینز ا لاٹ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم مدرس ڈے کے حوالے سے سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہے وہ ہے مدرز ہارٹ، جو ایک ماں کا دل ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور بہت ہی خوبصورتی سے سیکھیں گے۔ جو ہماری جو آج کی مرکزی آیت ہوگی وہ قضات کی کتاب سے لی جائے گی، اور قضات کی جو کتاب ہے اس میں ہمیں بائبل کے ہیروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو یہ قاضیوں کی کتاب ہے، جو جج ہوتے ہیں یا جو انصاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منصف ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم ہیروز کو دیکھتے ہیں۔ ہیروز وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کی زندگیوں کو آپ ایز اے انسپائریشن لے سکتے ہیں، یا جن کی زندگیوں سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بہت بڑے کام کیے ہیں یا کارنامے کیے ہیں، اور خداوند کی اس کتاب میں، قضات کی کتاب میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ قضات جو ہے وہ قاضی کی جمع ہے، اور یہاں پر جو ہے جتنے بھی ہیروز کا آپ کو ذکر ملے گا وہ کوئی غیر معمولی کام انہوں نے نہیں کیے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ چونکہ یہ مدرس ڈے اسپیشل ہے تو قضات کی کتاب میں سے ایک ایسے ہیرو یا ہیروئن یا کریکٹر کے بارے میں بات کریں گے جس کے وسیلہ سے ہم مدرس ڈے کو اور زیادہ سمجھ پائیں، یا کیوں جو ہے ماں کا جو دل ہے اس کو سمجھنا ضرور ہے۔ ہلیلویا۔ تو آئیں، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ ضرور جو ہے بائبل مقدس میں سے نکالیں، قضات 5ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو وہاں سے ہم پڑھیں گے قضات 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسرائیل میں حاکم موقف رہے، وہ موقف رہے جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ ہیلیلویا۔ کلام پاک پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور یہ آیات اتنی سادہ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ہی آپ کو مفہوم کی سمجھ آ رہی ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ اسرائیل میں حاکم جو تھے وہ موقف ہوتے جا رہے تھے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی تھی، کوئی حکمران نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جن قوموں میں جو ہے وہ لیڈرز نہ ہوں وہ قومیں جو ہیں وہ خسارے کا شکار ہو جاتی ہیں، جن قوموں میں قیادت شپ نظر نہ آئے جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جو ہے اپنے چرچز کو دیکھ لیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اگر پاسٹر کی آپ کو اسٹرانگ لیڈرشپ نظر نہیں آئے گی کلیسیا میں تو کلیسیا آپ کو ترقی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو کلیسیا جو ہے خسارے میں کیوں جا رہی ہے، کیونکہ اس کلیسیا میں اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی۔ اور بہت سی ایسی مثالیں، اگر آپ ریگولر چرچز کا حصہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ جو چرچز ہیں وہاں پر جو ہے چرچز کی جو کمیٹی ہے،
कबीना जो बनाई जाती है उनका टेक ओवर है, और वो पास्टर्स को जो है, पासवान्स को जो है वो एक कोने में लगा देते हैं और दे टेक ओवर होल चर्च जो है। लेकिन आपको पता है कि लीडर जो है वो पास्टर ही है, क्योंकि खुदावंद ने अपने ममसू को चुना हुआ है। खुदावंद ने पासवानों को जो है वो इख्तियार बख्शा है और वो खुदा के नुमाइंदे हैं। वो जो है सरकशी या बागी नहीं है, उनको खुदावंद ने उनको इख्तियार दिया है, और जो है चर्च जो है अंडर जो है पास्टर्स की लीडरशिप में चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जो लोग पास्टर्स के या खुदावंद के मंसूब के खिलाफ खड़े होते हैं, वो लोग बागी होते हैं, वो सरकश होते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से जो है कलीसिया जो है वो तत्तर बत्तर हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कलीसियाओं का मकसद ही सिर्फ यही होता है कि वो किस तरह अपने पासवान को पॉइंट आउट कर सकें, किस तरह कोई ना कोई उनका जो नेगेटिव या कमजोरी जो है, नेगेटिव तो नहीं कहूंगी, कमजोरी जो है वो दिखाना चाहते हैं लोगों को जो है, ताकि वो प्रूफ कर सकें कि हमारे चर्च की जो लीडरशिप है, जो हमारा पासवान है, वो कमजोर है। लेकिन आपने उन बागी और सरकश लोगों की टीम का हिस्सा नहीं बनना, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, और अपने आप अपने दिलों को सख्त नहीं करना, बल्कि आपने जो खुदावंद ने आपको लीडर दिया हुआ है, पासवान दिया हुआ है, खुदावंद का ममसू दिया हुआ है, उनकी लीडरशिप में चलना है। और जैसा कि अभी हमने कलाम में पढ़ा है, उसकी तरफ वापस आते हैं और सूरत हाल को देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसराइल में हाकिम मौकफ रहे जब तक मैं दबूरा मां होकर बर्पा ना हुई। हालेलुया। आपको पता है कि दबूरा जो है वो नबिया थी, और उसकी अपनी कोई भी बायोलॉजिकली या जो है जिस्मानी या उसके रहम से किसी भी औलाद की पैदाइश नहीं हुई थी। फिर से दोहराना चाहूंगी कि जो दबूरा नबिया जिसकी बाबत अभी हम पढ़ रहे हैं, उसकी अपनी कोई भी बायोलॉजिकल औलाद नहीं थी, लेकिन वो कौम की मां बनी। ये एक गहरा भेद है, और हम सीखेंगे कि ये एक मदर्स हार्ट है, मां का दिल है। मां का दिल होने के लिए या ये गिफ्ट खुदावंद की तरफ से मिलने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी बच्चे को जो है अपने रहम से जन्म दें, बल्कि ये जो मदर्स हार्ट है, दैट्स अ प्रेशियस गिफ्ट, खुदावंद का एक खूबसूरत तोहफा है, और खुदावंद सिर्फ उन्हीं को देता है जिनके अंदर इसकी लगन होती है। और ये जो माँ का दिल है वो क्या है? माँ का दिल परवरिश करता है, दुख सहता है। एक माँ जो है बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चे के लिए दुख सहती है, जैसे जो है क्योंकि हम जो सब जो है मसीह का फर्दन बदन है, ठीक है, एक कलीसिया की सूरत में हम इकट्ठे हैं, तो कलीसियाई तौर पर ही से सीखेंगे कि जैसे एक पासवान है वो अपनी कलीसिया के लिए रखने में खड़ा होता है, उस पासवान के अंदर भी जो है माँ का दिल है। वो अपने बच्चों के लिए जिस कलीसिया को उसने दुआएं रोजे रख रख के बनाया है, ठीक है, उनको निजात का मैसेज दिया है, यीशु मसीह की निजात का मैसेज दिया है, और कंटिन्यू हर रोज जो है वो पासवान जो है या चर्च लीडर जो है वो कलीसिया को जो है कलाम की रोजी दे रहा है, रोटी दे रहा है, तो वो एक माँ की तरह कलीसिया की परवरिश कर रहा है। तो एक पासवान के अंदर भी जो है वो माँ का दिल हो सकता है। हालेलुया। और इस हवाला में मैं आपके साथ ये भी कोट करना चाहूंगी कि पलूस रसूल हम पर ये बात अया करते हैं कि जो खादम है उनके दिलों में भी खुदा ने माँ जैसा जो दिल दे रखा है। वो रोल जो आपकी माँ अदा करती है, आपकी तालीम तरबियत, आपकी परवरिश, आपके लिए दुख उठाना, आपके लिए मेहनत करना, आपके लिए मुशक्कत करना, वो सब आपका जो रूहानी जो है उस्ताद जो है, आपका पास्टर जो है, वो भी आपके लिए इसी तरह करता है। गो के जो है, क्योंकि माँ खुदावंद ने हमें जिस्मानी तौर पर दी हुई है, तो इस वजह से हम उसकी ज्यादा कदर करते हैं, लेकिन जो हमारे रूहानी उस्ताद या रूहानी माँ बाप खुदावंद ने हमें दिए हैं, उनको हम पहचानना भूल जाते हैं,
उनकी भी हमने ऐसे ही रिस्पेक्ट करनी है जैसे हम जो है अपने दुनियावी माँ बाप की करते हैं, क्योंकि जो हमारे रूहानी माँ बाप हैं या हमारे पासबान जो हैं वो हमें ऐसा इल्म देते हैं जो हमें आखिरत का इल्म दे रहे हैं कि इस दुनिया के बाद अगली दुनिया में हमारे साथ क्या होने को है और हमें किन रस्तों पर चलना है और किस वजह से जो है हम अबदी जिंदगी को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। करते हैं और अपनी अपनी कलीसिया को माँ की तरह पाल रहे हैं, ठीक है, माँ की तरह उनकी टेक केयर कर रहे हैं। जो दबूरा नबिया है उसके नाम का मतलब है शहद की मक्खी। आपको पता है कि शहद की मक्खी जो है शहद की जो मक्खी है उन फूलों पर नहीं जाती जहां पर उसे रस ना मिले। इतनी अजीम औरत जिसका जिक्र हमें बाइबल में मिल रहा है उसके नाम का मतलब है शहद की मक्खी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके जो नाम के मीनिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी भी अपने बच्चों के नाम रखें तो बड़े सोच समझ कर रखें, क्योंकि जो नाम है वो पर्सनैलिटीज पर, शख्सियात पर असरअंदाज होते हैं। तो आज जो है दबूरा की तरफ वापस जाते हैं कि दबूरा के नाम का मतलब जो है शहद की मक्खी है। और शहद की जो मक्खी है वो बहुत ही सियानी है, वो कभी भी उस फूल पर नहीं बैठती या अपना वक्त जाया नहीं करती जहां से उसको रस नहीं मिलता। खुदा ने जो है उसको एहतियार दे रखा है और ये एक उसकी खूबी है, खूबसूरती है, ठीक है, एक खूबसूरती है। एक और खूबसूरती ये भी है कि अगर उसके छत्ते में कोई भी हाथ डाले, शहद की मक्खी के छत्ते में अगर कोई भी हाथ डाले तो वो जो है उस पर अटैक करती है, अपने डंग से जो है हमला करती है। और वो अपने डंग को जो है तहफ्फुज के लिए, अपने बच्चों की, अपने छत्ते की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। उसके अंदर एक माँ की स्पिरिट है। हालेलुया। दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी के अंदर एक माँ की स्पिरिट है कि जब उसके छत्ते पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है या कोई छूने की कोशिश करता है तो वो अपना दिफा करती है, अपने डंग का इस्तेमाल करती है। और यही जो एबिलिटी है या स्पिरिट है एक माँ में भी है। माँ भी ऐसा करती है, माँ जो है अपने बच्चों का दिफा करती है। माँ अगर खुद जो है अपने बच्चों को मारे, जो कुछ मर्जी करे, लेकिन कभी भी वो इस बात का अलाउ नहीं करेगी कि कोई दूसरी औरत या कोई आस पड़ोस की औरत जो है उसके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। एंड दैट्स द मदर नेचर। ये एक माँ की शख्सियत है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करने के लिए सख्त रवैया भी जो है इस्तेमाल करेगी, लेकिन कभी भी किसी दूसरे शख्स को नहीं चाहेगी कि वो जो है उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। हालेलुया। तो ये भी एक माँ की बहुत लेकिन उसके साथ साथ हमारा खुदावंद भी ऐसा है। हमने पहले शहद की मक्खी की मिसाल से सीखा है, फिर हमने माँ की मिसाल से सीखा है, और अब हम खुदा की मिसाल से सीख रहे हैं कि खुदावंद भी ऐसा है। वो चाहे जो मर्जी करे, वो अपने लोगों को सिखाने के लिए उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। जैसे कि हम जो है पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि इसराइल जो कौम है, खुदावंद ने उनको सबक सिखाने के लिए बहुत दफा सेरी में लेके गया, वो जंगलों में तितर बितर फिरते रहे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद कभी भी नहीं चाहेगा कि लोग उसके बेटे बेटियों को हलाक करें। तो ये तो वो अपने बेटे बेटी की तरबियत के लिए खुद तो उन पे सख्त रवैया इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे बेटियां हलाक हों। और यही यीशु मसीह का भी जो है इस दुनिया में आने का मकसद था कि उसके लोग जो हैं जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और फिर हम जानते हैं कि जो दाऊद नबी है वो जब साउल के हैमे में से वापस होकर बाहर आ गया है, आपको पता है दाऊद जो साउल है वो दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद नबी साउल के हैमे में से होकर वापस आ गया क्योंकि वो ममसू था, वो खुदा का ममसू था। और खुदावन के ममसू के जो कोई भी खिलाफ उठता है
وہ جو ہے خداوند اس کا بدلہ لیتا ہے. آپ کبھی بھی اپنی زبان کا استعمال خداوند کے خادمین یا ایسے خداوند کے چنیدہ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے خلاف کبھی بھی اپنی زبان کا استعمال نہ کریں, کیونکہ خداوند نے اپنے ممسوح کو جو چنیدہ پاسبان ہیں یا چنیدہ ایسے بیٹے بیٹیاں جو خدمت میں, ان کو خداوند نے اتھارٹی دے رکھی ہے. پھر واپس سے ہم دبورہ کی طرف آتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے کوئی قاضی نہ تھا, وہ کوئی حکمران نہ تھا, اور یہ وہ شخصیت ہے جو نبیہ بھی تھی, رہنما بھی تھی, ایک شاعرہ بھی تھی, شاعری بھی لکھتی تھی, اور قاضی تھی, قوم کا انصاف کرتی تھی, جج تھی. جو آج کے دور میں ہم جج کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری کورٹس میں, جو ججز ہوتے ہیں لوگوں کا انصاف کرتے ہیں, دبورہ اس دور کی جج تھی, قاضی تھی. ریسنٹلی جو ہے ایک بڑا خوبصورت کلپ میری نظروں کے آگے سے گزرا, اور میں نے اسے اپنی سٹوری پر بھی شیئر کیا تھا کہ ایک مرغی جو ہے, ایک بارش ہو رہی ہے اور بارش کے دوران میں وہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھی ہے. خود وہ بھیگ رہی ہے بارش میں, لیکن اس کا فوکس جو ہے یہ ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بارش میں نہ بھیگیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع نے اپنی تعلیمات میں یہ بات کہی کہ اے اسرائیل, میں نے بارہا چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے, اسی طرح میں بھی تم کو اپنے پروں کے نیچے چھپاؤں. یعنی خدا کے اندر باپ اور ماں دونوں کی محبت موجود ہے. ہیلیلویا. یہ ایک خوبصورت خدا کے اندر باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دونوں موجود ہیں. پریز جیسس. نیچے آپ کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے آپ برکت پا رہے ہیں, اور خداوند جو ہے مدرز ہارٹ, ماں کے دل کے بارے میں ہم سے بات چیت کر رہا ہے. پریز جیسس. خدا پیار ہے, خدا محبت ہے, اور یہ ماں کا دل ہے جو خدا نے ہم سب کے اندر رکھا ہے. وہ کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. ماں کا دل کوئی بھی رکھ سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک احساس ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے. پریز جیسس. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دبورہ کی کوئی بھی بایولوجیکل جسمانی طور پر کوئی اولاد نہ تھی, لیکن وہ ایک ماں تھی, کیونکہ اس کے اندر ایک ماں کا دل تھا. اور ماں کا رول کیا ہوتا ہے, اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے, وہ دکھ سہتی ہے. کون کی ماں کس طرح دکھ سہتی ہے یا پرورش کرتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ماں کا کام ایک مرد بھی کر سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, کیونکہ یہ مدرز ہارٹ ہے, یہ ایک احساس ہے. آپ دعا میں بھی خداوند سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرے دل کو نرم کر, ماں کی طرح میرے دل کو نرم بنا دے, تاکہ جو ہے میرے اندر دوسروں کے لیے جو ہے محبت آ جائے, اپنے دشمنوں کے لیے بھی محبت آ جائے. ہیلیلویا. جیسے ماں اپنے بچوں کے لیے محبت سے بھری رہتی ہے, ویسے خداوند ہمارے دلوں کو بھی خداوند کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے محبت سے بھرا رکھے. اور جیسے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, آپ سے یہ بات ڈکی چھپی پوشیدہ نہیں ہے, بہت سے ایسے سنگلز پیرنٹس ہیں, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ باپ سنگل پیرنٹ ہے یا مدر سنگل پیرنٹ ہے, وہ ماں کی طرح بھی کام کر رہے ہیں اور باپ کی طرح بھی جو ہے کام کر کے جو ہے بچوں کی رسپانسبلٹیز کو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک برکت ہے, اور خداوند جو ہے ماں کا دل جو ہے باپ کو بھی دے سکتا ہے, تاکہ بینگ اے سنگل پیرنٹ جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے ماں کی طرح بھی پیار دے سکتے ہیں. پریز جیسس. تو یہ جو کام ہے خدا کسی کو بھی سونپ سکتا ہے, پاسٹرز کو بھی دے سکتا ہے, کسی بھی شخص کو خدا اس کام کے لیے چن سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. پریز جیسس. اور پل بتاتے ہیں, کھولتے ہیں دوسرا سیمیول اس 21ویں باب کی 8ویں سے 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور پڑھیں, اگر نہیں ہے تو حوالہ جات کو پلیز آپ نوٹ کر لیں, تاکہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ جو ہے ضرور جو ہے ان حوالہ جات کو پڑھیں اور دعا کریں کہ خداوند آپ سے بولے, اور پاک روح کی گائیڈنس کے مطابق جو ہے خداوند کوئی نیا بھید اور مکاشفہ آپ پر کھول سکتا ہے. تو دوسرا سیمیول 21ویں باب کی
8वीं आयत सेपरेटली हम पढ़ेंगे और 10वीं आयत जो है वो सेपरेटली पढ़ेंगे, और वहां पर जो एक बड़ा खूबसूरत किरदार जिसका जिक्र हमें मिलता है और ये बड़ा कम जो है बताया जाता है इसके बारे में, और उस किरदार का नाम है रसफा। उसका नाम है रसफा, और इस नाम का मतलब है गर्म पत्थर, यानी जज्बात से भरा हुआ पर्सन जो है, जज्बात से भरी हुई जो औरत है या लड़की है या जज्बात से भरी हुई माँ, ये उसके नाम का मतलब है। उसके अंदर जज्बात है, उसके अंदर अपने बच्चों के लिए मोहब्बत है, अपने बच्चों के लिए तड़पती है, अपने बच्चों के लिए फिक्र करती है, दौड़ती है और उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी अपनी जो वालदा हैं, उनके पास किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं थी, वो कभी स्कूल ना जा पाई, लेकिन उनकी जो शख्सियत है, जब भी मैं अपनी माँ को देखती आई हूँ बचपन से ही, तो आई फील लाइक कि वो हमारे घर की जो एक मलका है। उनके पास एहतियारात भी हैं, लेकिन उनके पास वो भी एहतियारात है मोहब्बत के साथ साथ हमें डिसिप्लिन करने के भी, हमें सिखाने के भी, हमारी तरबियत करने के भी। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी करते हैं हमें जो है ये तोहफा मिला है। मैं अपने सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा था, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मुझे बहुत सी चीजें जो हैं वो याद नहीं थी रहती, और इतना मेरा जो जहन था वो कमजोर था कि मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। हाई स्कूल तक जो है सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते रहे, तो वो थिंग्स जो है वो चेंज होती रही। लेकिन मेरी मामा ने जो है, मेरी मदर ने हमेशा मुझे पुश आउट किया है और बताया कि आई कैन डू इट। जो है फेलियर्स डजंट मीन, एक नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप कभी कामयाब ही नहीं होंगे। हालेलुया। तो में कि उन्हीं की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की है मैंने, ठीक है, आउट ऑफ कल्चर शादी की है, इंग्लिश में 24 आवर्स जो है इस कल्चर में हम रह रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सीखी जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक माँ ने अपनी बेटी के लिए ख्वाब देखा और उसकी कंटिन्यू जो है वो इंकरेजमेंट करती रही, और आज के दिन भी जब भी मेरी माँ से बात होती है, शी ऑलवेज इनकरेज मी। तो ये एक माँ की ड्यूटी है अपने बच्चों के लिए, ये एक माँ का दिल है कि वो कभी भी अपने बच्चों को हौसला अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती रहती है। और जितने भी मेरे अंदर रूहानी जिस्मानी गिफ्ट्स हैं वो मुझे अपनी माँ से विरासत में मिले हैं, और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं इस टेस्टिमनी को शेयर कर पाई कि मुझे खुदावंद ने इतनी बाबरकत मदद दी। और यकीनन आप में से बहुत से बहन भाई हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी मामा ने आपके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं जो हूँ बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छे माँ बाप हैं। प्रेज जीसस। लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो बहुत गरीब होते हैं क्योंकि उनके दिल कंजूस होते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से बात जो है इस बात, बहुत से लोग इस बात से रिलेटेड कर पाएंगे। अमीर होने से मुराद ये नहीं कि आपके पास बहुत सा पैसा है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। और जो है मनी जो है, चाहूंगी कि जो मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता। गो कि यू कैन गेट मैनी थिंग्स थ्रू द मनी, आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। जैसे कि ये एक माँ बाप का खूबसूरत रिश्ता जो है आप कभी भी जो है पैसे से खरीद नहीं सकते। हालेलुया। तो अगर आप गरीब हैं या आपका कुछ तरह का भी स्टैंडर्ड है, आप जो है लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा आ गया है तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और करते भी हैं लोग। जिन लोगों के पास पैसा होता है लोग उनको जी जी सलाम दुआ, ठीक है, उनके आगे झुक झुक के पढ़ते हैं। और सुलेमान नबी भी जो है इस बेत का खुलासा हम पर खोलता है कि जब दौलत बढ़ जाती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं। वो शख्स जिसका ताल्लुक मेल मिलाप मोहब्बत से भरा हो, प्यार से भरा हो, हकीकत में वो अमीर है, वो रिच है, वो दौलतमंद है, ना कि जो दुनियावी पैसा रखने वाला। लेकिन वो शख्स दौलतमंद है जिसके अंदर मेल मिलाप की स्पिरिट है,
جو ہاسپٹیلٹی کو پسند کرتا ہے وہ حقیقی امیر شخص ہے. اور جیسے میں آپ کو اپنی والدہ کے بارے میں بتا رہی تھی, میں نے بچپن میں انہیں دیکھا ہے کہ ہم کسی امیر گھرانے میں تو پیدا نہیں تھے ہوئے, بچپن سے میں نے انہیں دیکھا کہ شی ہیو اے گیونگ ہارٹ. ان کو بہت بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کسی کی مدد کرتی ہیں, اور ایسی ایسی جگہوں پر انہوں نے مدد کی ہے لوگوں کی جب ان کی اپنی بہت سی ضروریات تھی, اپنی بہت سی خواہشات تھی, انہوں نے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کی. یہ ایک مدرز ہارٹ, یہ ہے خداوند کی طرف سے جو ماں کا دل آپ کو ملتا ہے. جسمانی طور پر مدر بننا یہ ایک نیچرل عمل ہے عورت کے اندر جو ہے, اور جو لوگ خداوند پہ نہیں بھی ایمان رکھتے وہ بھی مدر بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یسوع مسیح میں ہوتے ہیں اور یسوع مسیح آپ کو حقیقی ماں کا دل بخشتا ہے, then you become a real mother, کیونکہ آپ جو ہیں لوگوں سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرنا, حقیقی رسپیکٹ لوگوں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف خداوند ہی کی وجہ سے. This is the heart of mother, یہ ایک ماں کا دل ہے. اور پالوس رسول جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں, اور یہ جو آیات ہیں یہ میرے دل کے بہت بہت قریب ہیں. جب میں نے نئی نئی بائبل کو پڑھنا سیکھا, پڑھنی شروع کی چائلڈ ہوڈ میں, تو یہ جو آیات تھی یہ میرے دل کے بہت بہت قریب ہے. اگر آپ نے ابھی تک جو ہے اس حوالے کو کبھی نہیں پڑھا, پہلا تسلنیکیوں اور دوسرے باب کی 6 سے 7 آیت کو پڑھیں گے. پہلا تسلنیکیوں دوسرا باب 6 سے 7 آیت میں پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے. اور یہ آیات ایسے ہیں کہ یو ول فیل کہ یہ شاعرانہ آیات ہیں, بہت خوبصورت. آئیں دیکھیں کیا لکھا ہے. اور ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے, یہ پالوس رسول جو ہے تسلنیکیوں کی کلیسیا کو لکھ رہے ہیں. اور ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے, نہ تم سے نہ اوروں سے, اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے. پالوس رسول فرما رہے ہیں کہ نہ تو ہم آدمیوں سے عزت چاہتے تھے, نہ جو ہے تم سے, اور نہ ہی اوروں سے, اگرچہ کہ خدا کا رسول ہونے کے ناطے جو ہے ہم تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے. اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی آپ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے, آپ کی مدد کر رہا ہے, تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیٹس اے نیچرل پروسیس, ٹھیک ہے, کہ جب اگر آپ کوئی بیج بو رہے ہیں تو آپ کی یہ ڈیزائر ہوگی کہ وہ بیج جو ہے ایک پودا بنے, درخت بنے, درخت میں سے پھل لائے. جیسے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ وہ شخص آپ کی رسپیکٹ کرے, کچھ آپ کو عزت دے. پالوس رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے, لیکن ہم نے جو ہے تم سے عزت کی ڈیزائر نہیں کی, نہ صرف تم سے آدمیوں سے بلکہ اوروں سے بھی. یہ خوبصورت بات ہے. اور اگلی آیت جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, لکھا ہے بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے. ہیلیلویا, پریز. رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو نرمی سے پالتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ نرمی سے پالنے سے کیا مراد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو زیادہ رسپانسبلٹی ماں کی ہوتی ہے, کہ ماں جو ہے بچے کی بہت بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ بچے کے منہ میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو. آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ مائیں اس بات سے متفق ہیں. وہ کوشش کرتی ہے. اور جیسے میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا جو ہے 1.5 سال کا بچہ ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دی تو اس کا ریئیکشن الٹا ہونا شروع ہو گیا, اور دے فائنڈ آؤٹ کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ان چیزوں سے الرجک ہے, بچپن سے ہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پالوس رسول جو ہے بتا رہا ہے تسلنیکیوں کی کلیسیا کو کہ جو ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کو نرمی سے پالتی ہے, ہم تمہارے درمیان نرمی سے رہے. اسی طرح جو کلیسیا پالوس رسول پال رہا تھا, ٹھیک ہے, جیسے وہ روحوں کو بچاتے ہیں, وہ اس کے بچوں کی مانند ہیں, وہ اس کلیسیا میں ایون کہ وہ لیڈر ہے. لیکن جو ہے ریفرنس ہے فرسٹ تسلنیکیوں دوسرے باب کی جو ہے ہم 5ویں سے 6 آیت کو پڑھ رہے ہیں. سیکنڈ تسلنیکیوں
दूसरा बाब और उसकी हमने 6 से 7वीं आयत को पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही जो है पलूस रसूल जो है वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया में नरमी से जो है रहे हैं कि उन्होंने कोई जो है सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया, हत्ता कि वो कर सकते थे, क्योंकि ये जो माँ का दिल है वो नरम और सख्त लहजा इख्तियार करती है बाजुकात, और सिर्फ इस वजह से करती है कि जो है बच्चा जो है वो तरक्की पाए, बच्चा महफूज रहे और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना होने पाए। सारे माँ बाप ऐसा करते हैं, दुनिया के कोई बड़े कम ही ऐसे माँ बाप होंगे, या मैं यही कहूंगी कि वो डीमन पोजेस हैं जो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो पलूस रसूल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो माँ का सा दिल है जो वो अपनी कलीसिया के लिए वो रख रहा है, और यहाँ आयात में हमें जिक्र मिल रहा है कि वो बोझ डाल सकता था, क्योंकि अगर आप किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं है कि वो अगला बंदा भी आपसे नेकी ना करे। अच्छाई के बदले अच्छाई होना एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अच्छाई के बदले अच्छाई ना होना इससे अच्छा ये बेहतर है कि आप तवक्कुआत जो हैं वो कम से कम रखना शुरू हो जाएं। नेकी करें, अच्छाई करें, लेकिन ये तवक्को ना करें कि अगला शख्स भी जो है वो भी ऐसा करेगा, क्योंकि मेरे अंदर माँ का सा दिल है और मैं तुम्हारे दरमियान जो है वो नरमी से रहा हूँ। प्रेज जीसस। तो हम पढ़ रहे थे शुरू में जो है कि एक औरत दबूरा जिसका जिक्र हमने पढ़ा, और उसकी जिस्मानी औलाद ना थी, उसका कोई बच्चा ना था, लेकिन वो अपने आप को माँ कहती है। इसी जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह जो है पलूस रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान नरमी से रहा, नरमी के साथ भी और सख्ती के साथ भी। जैसे आप देखते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, और यहाँ का भी यही हाल है, पाकिस्तान का भी यही हाल है कि छोटी छोटी उम्रों में जो है आजकल के जो नौजवान बेटे बेटियां हैं वो एक डिफरेंट डगर पर चल निकले हैं। बहुत सी खबरों में आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में जो प्रेगनेंसी होती हैं, छोटी छोटी उम्रों में बच्चियां जो है 12-12, 14-14 साल की जो बच्चियां हैं वो घर से भाग जाती हैं, घर छोड़ जाती हैं और शादियां कर लेती हैं, या शादी के बगैर भी, जिन कंट्रीज में हम रह रहे हैं शादी के बगैर भी जो है उनका रिलेशनशिप होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक औरत के लिए सिर्फ शादी ही उसका मकसद है? जो बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, भाग जाते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, तालीम अधूरी छोड़ देते हैं, अपने फ्यूचर को तबाह कर देते हैं, माँ बाप उनके गम में परेशान हो जाते हैं, उनका हाल बदतर से बदतर हो जाता है। मेरे सामने खुद ऐसी कई मिसालें मुझे याद हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो माँ बाप थे उनके बेटे बेटियां ओवरसीज चले गए या घरों से भाग गए, तो उनके पेरेंट्स की जो है हेल्थ जो है डाउन से डाउन तर होती चली गई। क्यों? सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि उन बच्चों पर जो है उन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर किया, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कदर ना की। लेकिन फिर भी माँ बाप जो है कभी भी अपने बच्चों का जो है बुरा नहीं चाहते, और वो अपने बच्चों के लिए हर सहूलत प्रोवाइड करना चाहते हैं, हर तौर से चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें और अच्छी जिंदगी गुजारें। ये सिर्फ एक माँ का दिल है जो खुदा ने माँ और बाप दोनों के अंदर डाला है कि वो जो है अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें और केयर करें। दोबारा से अपने एक हवाले की तरफ आते हैं। मैं शुरू में आपको बता रही थी कि एक जो है किरदार बाइबल मुकद्दस में रसफा का किरदार, वो एक बहुत बड़ा किरदार है, माँ का किरदार, और उसका हवाला जो है हमें दूसरे सैमुएल में मिलेगा। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस हो तो जरूर जो है उसको पढ़िएगा। दूसरा सैमुएल और उसकी 21वें बाब को देखेंगे। 21वें बाब की पहले हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम 10वीं आयत को पढ़ेंगे। 9वीं आयत को नहीं पढ़ेंगे, 8वीं आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद 10वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है दूसरा सैमुएल और उसका 21वें बाब में, पर बादशाह ने आया की बेटी रिस्फा के दोनों बेटों अरमोनी मसूसियत को जो साउल से हुए थे
और साउल की बेटी हैकल के 5 बेटों को जो बुर्जली महलूती के बेटे उर्दरी एल से हुए थे लेकर उनको जबरून के हवाला किया। ठीक है, ये बेटों के बारे में बताया गया है। उसके बाद 10वीं आयत में लिखा है, आया की बेटी रिस्फा ने ठाट लिया और फजल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही जब तक के आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। ये एक बड़े बड़े किरदार की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक जो माँ है उसके बारे में हमें जिक्र मिल रहा है। बड़ा कम इसके बारे में शेयर किया जाता है कि रिस्फा ने जो है टाट ओढ़ा है। उसके नाम का मतलब जो है, मैंने पहले भी आपको बताया कि गर्म जज्बात, पत्थर जैसी पर्सनैलिटी, जज्बात रखने वाली जो औरत है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मोहब्बत से भरी हुई है। उसके अंदर माँ का दिल है और इस कदर उसके जज्बात और एहसासात हैं कि वो जो है वो बारिश से भी नहीं घबरा रही, वो चट्टानों से भी नहीं घबरा रही, बल्कि जो उसने मन्नत मांगी है वो वहां पर खड़ी है। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। ये सब अजीम माएँ हैं, दबूरा, रसफा। और उसके बाद हम मुकद्दसा मरियम को देख रहे हैं कि खुदावंद की जो माँ है उसकी शख्सियत पर जब हम गौर करें तो वो भी एक अजीम किरदार की मालिक है। हम जानते हैं कि वहां पर और भी बहुत सी जो है मरियम जो है का जिक्र मिलता है उस दौर में, बहुत से, क्योंकि ये नाम बड़ा कॉमन था यीशु मसीह के दौर में। तो बहुत सी और भी माएँ थी जिनका नाम मरियम था, लेकिन वाहिद यीशु मसीह की एक माँ थी जिसका जो है चुनाव किया गया था यीशु मसीह की पैदाइश के लिए, क्योंकि वो एक अजीम औरत थी। शी वाज अ ग्रेट वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। और उसका किरदार बहुत बड़ा था, उसकी गवाही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उसके अंदर जो है, मरियम के अंदर खुदा का प्लान और मंसूबा था जिसे वो कबूल करने की भी कुव्वत रखती थी। इसीलिए तो मरियम ने कहा था कि तेरी बंदी के लिए तेरे प्लान या इरादा के मुआफिक हो, यानी खुदा की बंदी खुदा के प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ये एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बात है कि हम अपने आप को अपने अंदर खुदावंद की मर्जी पूरा करने के लिए दे दें, बजाय कि हम अपनी मर्जी के लिए खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अपनी मर्जी के लिए खुदावंद के हुजूर रोजे रखें और दुआएं करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदावंद के हुजूर दुआएं करें। बल्कि हम हमेशा खुदावंद से यही हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमारी जिंदगी में, जैसे मरियम ने दुआ की कि मेरे लिए तेरे खोल के मुआफिक हो, जैसा है खुदावंद तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है उसी तरह है खुदावंद तेरी जो मर्जी है मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। कलाम मुकद्दस खुदावंद का पाक कलाम अजीम माओं से, अजीम औरतों से भरा पड़ा है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसी खूबसूरत शख्सियत का जिक्र जो है हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। ये कुछ चंद माओं का जिक्र जो है आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि हम इनके किरदारों के वसीला से, इनके किरदार में जो माँ का दिल है, दूसरों के लिए एहसास है, दूसरों के लिए जो वो दर्द रखती हैं या मोहब्बत रखती हैं, आज हमें भी उस प्यार को, मोहब्बत को, दूसरों के लिए जो हम दर्द है अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो मगरब के हालात हैं, ठीक है, यूरोप के या जिन कंट्रीज में हम रह रहे हैं, यहाँ के कल्चर बहुत फर्क है। यहाँ पर ज्यादा लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमारा एशियन कल्चर है, इंडो पाक का कल्चर है, बहुत खूबसूरत है कि वहां पर फैमिलीज का इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की जिंदगी में उनका बहुत काम होता है, इख्तियार होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ये खूबसूरत बात है और ये एक बिब्लिकल भी बात है कि माँ बाप जो है हमेशा, चाहे वो किसी भी एज में चले जाएं, चाहे बच्चे किसी भी एज में चले जाएं, बच्चों पर फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, क्योंकि कलाम फरमाता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तभी जमीन पर तेरी उम्र
दराज होगी। और इसी तरह अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। कलाम कहता है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावंद खानदानों को, घरानों को बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि जो खानदान है वो मसीह में आगे बढ़े, लेकिन उसके अपोजिट जो है, अबलीस जो है, डेविल जो है, वो खानदानों पर अटैक करता है, वो खानदानों को तबाह करना चाहता है। जो है कलाम फरमाता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इधर जैसे मगरब की बात कर रहे हैं, जो है जिन कंट्रीज में हम रह रहे हैं, ओपन कल्चर है, वहां पर तो तन्हाई ही सब कुछ है। लेकिन कलाम मुकद्दस खुद कह रहा है कि आदम जो है, इंसान जो है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो अच्छी बात यह है कि खुदावंद ने अगर आपको खानदान दिए हैं, पेरेंट्स दिए, माँ और बाप दिए, तो उनसे भागे नहीं, बल्कि जब भी आपको टाइम मिले उनके लिए वक्त निकाले, उनके साथ बातचीत करें। अगर आप दूसरी कंट्रीज में कोशिश करें कि उनको रेगुलर कॉल्स करें, ठीक है। जैसे मैं इधर अमेरिका में रह रही हूँ ओवर 11 इयर्स, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर से हट के, पाकिस्तानी कल्चर से हट के हैं, और बाज़ वक़्त हमें बहुत अजीब लगता है, स्पेशली जब आप नए नए कंट्रीज में आते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें जो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हम जो है लंच पे गए, तो उस वक्त मेरी दोस्त की जो है सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, वो शादीशुदा नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही वो बिल देने की बारी आई, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का तो एक ही बिल है, क्योंकि वी आर मैरिड, ठीक है। जहां भी हम जाएं तो एक नहीं बिल देना, दो बिल नहीं होते। लेकिन वो जो है लड़का लड़की जो है मेरे दोस्त थे, तो वो जो है उन्होंने 2 बिल मंगवाए खाने के। लड़की ने अपना बिल भरा और लड़के ने जो है अपना बिल भरा, किसी ने किसी का बिल नहीं भरा, ठीक है। तो लेकिन अगर यही पाकिस्तान में हुआ होता तो लड़के ने लड़की का भी बिल भरना था, बल्कि लड़की के पूरे खानदान का बिल भी भरने को वो तैयार होता है। तो ये जो कल्चर वाइज जो है बातें जो है वो डिफरेंट है। जिन जिन कंट्रीज में हम रह रहे हैं उनका कल्चर डिफरेंट है, लेकिन बाइबल का कल्चर वो सेम है, और हमने बाइबल का कल्चर ही अपनाना है जहां भी हम रहें, किसी भी कंट्री में अगर खुदावंद हमें रखता है। और बाइबल का कल्चर यही है कि हमारे अंदर जो है माँ का दिल आ जाए, माँ जैसी मोहब्बत आ जाए, ताकि हम जो है अपनी कौम के लिए, अपने खानदानों के लिए रखना में खड़े हों, मोहब्बत से भरे हों, शिफायत करते रहे, और हमारे घराने जो हैं वो मिसाली घराने बन जाएं, कामयाब, बाबरकत और सरफराज हो मसीह में। हालेलुया। और खुदावंद यकीनन खानदानों को बरकत देता है, और खुदावंद पेरेंट्स को ये शर्फ बख्शे कि वो अपने बच्चों की जो तरबियत है वो कलाम मुकद्दस के असूलों के मुताबिक करते चले जाएं। अगर इस मदर्स डे पे आपकी अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अपनी मदर्स के साथ रंजिश चल रही है, आपकी बातचीत अपनी माँ के साथ नहीं है, आपने अपनी माँ को इग्नोर किया हुआ है एक अरसा दराज से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर जो है मेक श्योर कि आप उन्हें कॉल करें, उनका हालचाल पूछें, उनसे माफी मांगे, क्योंकि बरकत का राज इसी में छुपा है। जब अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपकी उम्र दराज हो, कलाम का वादा आपकी जिंदगी में पूरा हो, तो आपको अपने पेरेंट्स से माफी मांगने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ आप इस दुनिया में जो है सरफराज हो, खुदावंद आपको इज्जत दे, उम्र की दराजी बख्शे, बल्कि आसमानी मकामातों में भी खुदावंद आपको अपनी बरकत से भराता चला जाए। हालेलुया। तो जब इस वीकेंड पे आप चर्चेज में जाएं, मदर्स डे सेलिब्रेट करें, तो जो बातें आज कलाम के वसीला से शेयरिंग की गई हैं उनको जरूर अपने जहन में रखिएगा, और उसके मुताबिक जो है खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी को पेश कीजिएगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। ये कलाम मेरे लिए भी बरकत का बाइस था, और मेरा ईमान है कि आपने भी इसके वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिलता चला जाए।